Before going to understand the admission of a partner, there is a need to understand what is the meaning of partnership. Before this, we have to understand the sole tradership. Means I say here, before going to understand the admission of a partner, there is a need to understand the definition of partnership. But before partnership, there is a need to understand the sole tradership. Under a sole tradership means sole trader means under this sole tradership, only one is the owner of a business. At the same time, he is a manager. At the same time, he is a decision taker, maker, etc. And means that owner of that business is a risk taker. Means whatever profit he get from that business activity, he can enjoy. And if he get a loss, so he is ready to bear that. So by this explanation, you get the meaning of sole tradership. Means under a sole tradership, there is only one owner of that business. Okay? And he is a risk taker, risk bearer, and decision taker, manager, and the owner at the same time. But as per the definition of business means any activity. Means when a person wants to earn something from that activity, we can say that is a business. And the businessman is interested to maximize the profit. And if you want to maximize the profit, so you have to do some activity in relation to your business. How we can increase the sale, how we can grab the market, local market, okay? And at suppose district level, at suppose state level, and then your country level and international level. Okay? The reasons are different. Okay? And by my explanation, you get some meaning. When I say here is a single person, due to single person, automatically some restriction created due to single person under sole tradership. Number one is capital. Restriction put on capital, because under this sole tradership, the owner invested the amount to start the business. ठीक है, फिर इसका भी एक मतलब लिमिट है उसका खुद का, ठीक है ना, मैक्सिमम लिमिट. दिस इज अ बेस द रेस्ट्रिक्शन. अनदर इज स्किल means each and every person is skillful. I have no doubt about that. मुझे कोई मतलब उसके बारे में डाउट नहीं है कि हर एक आदमी स्किलफुल होता है या नहीं होता है. सभी आदमी स्किलफुल होते हैं, ठीक है. लेकिन यह भी एक रेस्ट्रिक्शन हो गया यहाँ पे अंडर अ सोल ट्रेडरशिप, ठीक है. दूसरी बात और है डिसीजन. ठीक है. क्विक डिसीजन कैन बी टेकन अंडर अ सोल ट्रेडरशिप, ठीक है. बट हियर इज ओनली वन स्किल पर्सन टू डू और टू टेक सर्टेन टाइप ऑफ डिसीजन. आई बात समझे? मतलब ऐसा था, डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे एक ही आदमी है, वह डिसीजन लेगा
गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा ऐसा है, डिसीजन अगर सपोज डिस्कशन से मिला तो मेरे ख्याल से उसके लूप्स वगैरह और दूसरा कोई इफेक्ट होता होगा, इट मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। सो बाय दैट डिस्कशन means it will disclose, and how we can means minimize the effect on sole tradership, so it may be a fruitful, यह फ्रूटफुल हो सकता है। लेकिन सोल ट्रेडरशिप में डिसीजन के बारे में भी एक रेस्ट्रिक्शन हो गया। आई बात समझे? अब ये मैं बोलने का मतलब ये मैंने बिल्कुल मेन बात बताई है, कैपिटल, स्किल और डिसीजन। रिस्क टेकर, बेयरर भी वही है, बेयरर मतलब लॉस बेयरर लिखना पड़ेगा मुझे, लॉस शब्द लिखता हूं, ठीक है, लॉस बेयरर। आई बात समझे? एक ही आदमी है। प्रॉफिट एंजॉयर, यह भी एक ही आदमी है, प्रॉफिट, ठीक है। जानबूझ के मैंने लॉस पहले लिखा है, मतलब ऐसा होता है, द बिजनेसमैन इज रेडी to accept the risk. He is ready to accept the risk, by that he will get a profit. If he is not interested to bear the loss, he will not get the profit. This is the drawback of this commerce. ऐसा बोलना उचित नहीं है। जहां रिस्क है तो वहां निश्चित आपकी मंजिल यानी प्रॉफिट होती है और मिलेगा आपको। आई बात समझे? इस ड्रॉबैक के वजह से सोल ट्रेडर के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, ठीक है ना। ही कैन एंजॉय लोन आल्सो, बट यू विल गेट अ लोन फ्रॉम योर रिलेटिव्स। मतलब ऐसा हुआ, रिलेटिव से भी आपको लोन मिल सकता है। यू विल गेट दैट लोन, मीन्स दैट सोल ट्रेडर मे गेट लोन फ्रॉम रिलेटिव्स, ठीक है। उसकी भी एक लिमिट होती है रिलेटिव्स की लोन आपको देने की। आई बात सच है? एंड सपोज आफ्टर दैट दिस सोल ट्रेडर अप्रोचेस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, ही विल गेट अ लोन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स असेट। सो देयर इज आल्सो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। एंड ऑल द रिसोर्सेस ही एंजॉय टू रेज द कैपिटल। And why? Because the demand for his product increases day by day. That's why. अब मैंने तो पहले ही बोल दिया, each and every businessman wants to maximize the profit, but due to capital, skill, decision, profit, loss, it is not easy to each and every sole trader. ये कैप तो होना ही है और होती है। इसी वजह से अब इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए businessman is interested to grab the international market also, but due to lack of capital it is not possible. Suppose if you want to do business at your hometown, it may be easy with the help of your own capital, but if you want to grab the district market or suppose state market, so it is not easy for that a single person. There is a need of capital, ठीक है। कैपिटल दो तीन रास्ते मैंने बताए, एक लोन बताया, लेकिन फिर से कैप लगना ही है रिलेटिव्स के थ्रू। फिर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास गए तो भी कैप लगना ही है। आई बात समझे? क्योंकि ऑल आर डिपेंड अपॉन एसेट्स, फिक्स एसेट्स, ठीक है। यह एक रिस्ट्रिक्शन हो गया। अब इस बात को मतलब आपको इंटरनेशनल मार्केट एंड नेशनल मार्केट कैप्चर करने के लिए कैपिटल की तो जरूरत होना ही है। मैं तो स्टेट की बात कर रहा हूं। इसी वजह से इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, सोल ट्रेडर कैन थिंक अबाउट द पार्टनरशिप। यह एक बात ध्यान में रखना है अभी। अबाउट द मैंने बताया आपको पार्टनरशिप। जब मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप। I use this word partnership, so confusion created in your mind what is the meaning of partnership. मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। पार्टनरशिप इट इज अ रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस, ठीक है ना। मतलब रास्ता क्लियर हुआ। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, बिजनेस एक्टिविटी के लिए क्रिएट हो गए, ठीक है। वह सारे पार्टनर्स एग्री हो गए प्रॉफिट और लॉस बेयर करने के लिए, ठीक है।
all the partners acting as an agent for all of them. एक एजेंट के बेस पे भी वो सभी पार्टनर्स के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। सारे पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स ऑफ दैट पार्टनरशिप आर द ओनर। यह भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो यहाँ पे प्रॉब्लम एक क्रिएट हुआ था, ठीक है। अब पार्टनरशिप में क्या हो गया, मतलब ऐसा है, देर आर सपोज 3 पार्टनर, 1 2 and 3, ठीक है। अभी क्या हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल सॉल्व। आई बात समझे, ठीक है। स्किल में बी सॉल्व, ठीक है। देन डिसीजन मीन्स if the partners want to take decision, the partner can discuss with 1 2 3 4 etc, ठीक है। loss divided among 3, profit also divided among 3। मतलब क्या हुआ, burden of capital reduce, skill increases, ठीक है। मतलब डिसीजन may be taken बाई डिस्कशन। यह भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। लॉस डिवाइड हो गया, ठीक है। प्रॉफिट इंक्रीज भी हो गया, ठीक है। यहां पे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैपिटल बढ़ गया है, मतलब आपने मार्केट जो है दायरा उसका बढ़ाया है। आप स्टेट लेवल पे गए, फिर नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल, एक बात कह रहा हूं, आपके पास प्रॉफिट बढ़ गया इतना। इसी वजह से बाय दैट सोल ट्रेडर आर इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट हिज बिजनेस इनटू पार्टनरशिप। आई बात समझे, तो ये तो कोई प्रेशर नहीं पुट कर रहे अपन दूसरे अपने फ्रेंड्स वगैरह पे, ठीक है ना। मतलब सीधी सीधी बात है भाई, मेरा ये बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में मुझे कैपिटल की जरूरत है, ठीक है। अगर भाई तू अगर इंटरेस्टेड है तो मेरा बिजनेस ज्वाइन कर सकता है। आई बात समझे, पार्टनरशिप अपन क्रिएट करेंगे और व्यवसाय शुरू करेंगे, ठीक है। अभी पार्टनरशिप शुरू किया 1 2 3 4 एक्सेट्रा व्हाटसोएवर, ठीक है। अभी आपके ख्याल में आया होगा कि सोल ट्रेडरशिप में जो कुछ सब जो लूप्स है वह आप पार्टनरशिप के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझे, ठीक है। पार्टनरशिप का डीड ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया। अब छोटा मोटा बिजनेस है और कॉन्फिडेंस है 1 2 3 पार्टनर में, तो ओरल भी बात हो सकता है, ठीक है। बिजनेस जरा हेल्दी है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट भी तैयार कर सकते हैं। इसके बारे में अपन अलग डिस्कशन करेंगे, सोल ट्रेडरशिप के लिए भी करेंगे और पार्टनरशिप के लिए भी करेंगे। आई बात समझे। फिर अपने चैप्टर का नाम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है ना। मतलब अपना ऑब्जेक्ट जो था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। यू गेट द मीनिंग ऑफ सोल ट्रेडरशिप, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ partnership, and I will explain thoroughly that partnership in a separate lecture. Now the name of chapter is admission of a partner, ठीक है ना। and this chapter is useful for CA CS CWA and 12th exam also, ठीक है। अभी देखिए, जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, ऑलरेडी पार्टनरशिप एग्जिस्टेड, ठीक है ना, वो एक पार्टनरशिप ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। पार्टनरशिप ठीक है। हियर इज ए एंड बी आर द पार्टनर्स, दे ऑलरेडी डूइंग द बिजनेस, ठीक है ना। A and B, they already contributed suppose 1 lakh as a capital, ठीक है। They are doing their business from last 5 years or 10 years whatsoever, ठीक है। And whatever means before this I explain, each and every businessman wants to maximize the profit etc, decision profit loss gain whatsoever, ठीक है। अभी ये एग्जिस्टेंस में पार्टनरशिप है, पार्टनर से ए एंड बी, ठीक है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 लाख, ठीक है। मतलब उनका शेयरिंग रेशो
आपके ख्याल में आया ही होगा, शेयरिंग रेशियो लिख के देता हूं मैं यहां पे, रेशियो, ठीक है, रेशियो 1:1, ठीक है, वो उन्होंने डिसाइड किया 3:4, 4:2, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया 1:1। आई बात समझ है? ठीक है, आगे चलते हैं। I say here both are doing the business from last 5 years. That's why they prepare a balance sheet. ठीक है, they also prepare a balance sheet. सवाल ही नहीं आ रहा, ये बोलना मतलब ऐसा कोई आश्चर्यकारक नहीं है। ये उन्होंने बैलेंस शीट बनाई थी, ठीक है, बैलेंस शीट, ये लाइबिलिटी हो गए और ये एक एसेट हो गए। आई बात समझे? अब एसेट में कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, ठीक है, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, डेटर, स्टॉक एक्सेट्रा। लाइबिलिटी में कैपिटल रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, कुछ रिजर्व्स रहेंगे, बाद में एक्सप्लेन करता हूं, रिजर्व, क्रेडिटर्स, लोन एक्सेट्रा। आई बात समझे? ठीक है, 31 मार्च सपोज, ठीक है ना, 2020। आई बात समझे? ये बैलेंस शीट है, मीन दिस इज अ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। रास्ता क्लियर हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑफ अ पार्टनरशिप, दैट इज द लाइबिलिटी एंड एसेट, ठीक है। मतलब आपका अगर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप आपने रीड कर लिया होगा तो आपके समझ में आना है। जो नया, अगर ये लेक्चर नया कोई देखता होगा कि ही इज अननोन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट and he want to watch this, so he can't understand easily, ठीक है ना। इसी वजह से आपको फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप मालूम होना चाहिए, तो मैं जो ये बता रहा हूं तो उस स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब रहा मेरा चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी क्या हुआ, ए और बी है, ठीक है, इनको एक कोई तो भी नए पार्टनर को एडमिशन देना है। क्यों देना है? तो उनको कैपिटल चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने सोचा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो अपन ने कैपिटल ले लिया, रिलेटिव से भी ले लिया, ठीक है ना, अगर इसको बढ़ाना है तो क्यों नहीं, ठीक है, व्हाई नॉट, ठीक है, गिव्स द एडमिशन टू अ सी। आई बात समझे? ठीक है, सी को अपन एडमिशन देंगे। रीजंस बता दिया मुझे मैंने आपको कि कैपिटल चाहिए, या तो समझो ऐसा भी हो सकता है कि ये नोबेल पर्सन है, ठीक है, ठीक है, इसका रेपुटेशन है मार्केट में, ठीक है, ये अगर अपने साथ ज्वाइन हो गया तो आपका सेल बढ़ सकता है, यह भी रीजन हो सकता है। कैपिटल भी एक रीजन है और ये रेपुटेशन ये भी है। आप सोचो कि अपना जो बिजनेस है, अपने साथ अगर टाटा आ जाए तो अपने को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आई बात समझे? रेडीमेड मिल जाएगा अपने को, ऐसा मेरा कहना था, ठीक है। हर बिजनेस में होता है ऐसी बात, ठीक है। यह एक रीजन बताया, कैपिटल और एक रेपुटेशन, ठीक है। दूसरी बात ऐसा है जो स्किल था, ठीक है, आप मैंने तो बताया ईच एंड एवरी पर्सन हैव सम स्किल, ठीक है ना। लेकिन जैसा इकोनॉमिक्स का स्किल, अकाउंट का स्किल, स्पेशल जिसको मास्टर्स बोलेंगे अपन, उसमें क्या, अगर यह इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत अच्छा जानता है, डिसीजन इसके बहुत ही अच्छे आप इससे इंफॉर्मेशन मिल गए, तो बाय दैट ऑन दैट बेसिस बोथ आर इंटरेस्टेड टू गिव, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये बात ध्यान में रखना है, बिफोर गिविंग एडमिशन टू अ न्यू पार्टनर, ठीक है, दैट ऑल आर डिपेंड अपॉन द पार्टनर कंसेंट। ये both are means ready to give, one is ready, another is no, so partnership is not interested to give a admission to a new person। यह एक बात मतलब आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी एक बेस हो गया अपने पास। दूसरी बात ऐसा है, अभी जो मैंने बताया आपको कि पार्टनरशिप, अंडर अ पार्टनरशिप they are doing the business by contributing 1 lakh, ये क्लियर बात हो गया। अभी चलते हैं आगे, both are interested to give a admission to a partner, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया उसको कि भाई तू कैपिटल करके 1 लाख रुपए ला, मी कम अप विथ 1 लाख,
कम अप विथ 1 लाख, ये बात ध्यान में रखना, कम अप विथ 1 लाख, ठीक है। ही इज रेडी, वो रेडी हो गया, ठीक है भाई मैं तैयार हूं, आई एम रेडी टू कम टू ज्वाइन द पार्टनरशिप विथ अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। अभी क्या हुआ, 1 लाख पेड करने से क्या होता है, देखिए, सी विल गेट अ राइट, आई क्या बात समझे, एक हक मिलता है उसको, आफ्टर मीन्स पेइंग एज अ कैपिटल टू पार्टनरशिप एसेट में उसको हक मिलेगा, राइट मिलेगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, आई बात समझे। अभी सोचो आप कि इनका रेशियो था 1:1, ठीक है, इसका एंट्री होने से क्या हो जाएगा, इनका जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो वुड बी 1:1:1, आई बात समझे, ठीक है, मतलब इनको 50-50 मिल रहा था, अब ये 1/3 हो गया, आई बात समझे। इसका मतलब साफ हो गया है, बोथ द पार्टनर्स सैक्रिफाइस देयर रेशियो फॉर सी, मतलब फॉर न्यू पार्टनर, उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, इसका मतलब उनका एक लॉस हो गया है, आई बात समझे, उनका लॉस हो गया, उस लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए सी को गुडविल लाना है, गुडविल, ठीक है, गुडविल लाना है। सिंपल भाषा में ऐसा हुआ, गुडविल यह एक रेपुटेशन हो गया, ठीक है। इसके बारे में, मतलब गुडविल के बारे में एक लेक्चर, स्पेशल लेक्चर में गुडविल की ट्रीटमेंट कैसी होती है, गुडविल कैसा क्रिएट होता है, यह मैं बात करूंगा। सिर्फ इतना समझाने के लिए ख्याल में रखना है आपको, गुडविल एक रेपुटेशन है, जैसे टाटा है, अंबानी है, ठीक है, सबकी रेपुटेशन है, ठीक है। अब यह गुडविल लाना है, मतलब साफ हो गया, एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर वांट्स टू कम, आई बात समझे, वो पार्टनर मतलब रेडी हो गया, लेकिन वो कैसे आ सकता है, कैपिटल के वजह से ही कैन एंजॉय द राइट ऑन असेट्स, ठीक है। एंड व्हाट एवर रेशियो सैक्रिफाइस बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर अ न्यू पार्टनर, सो देयर इज अ नीड टू कॉम्पेंसेट देयर सैक्रिफाइसिंग बाय गिविंग बाय ब्रॉटिंग द गुडविल, आई क्या बात समझे, गुडविल लाना है, ठीक है। दे डिसाइडेड हाउ मच दे वांट, ठीक है, वो कैसे डिसाइड करते हो बाद में देखूंगा, बताऊंगा आपको, ठीक है। हाउ मच दे वांट, सपोज दे वांट 30,000, ठीक है, कम अप विथ, अब आपके मतलब दिमाग में एक प्रॉब्लम आया होगा, कैन वी एक्सप्लेन द गुडविल इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि ये जो मतलब एक ही लेक्चर में नहीं हो सकता है, स्पेशल लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज गुडविल नॉट इन अ सॉलिड फॉर्म, ठीक है, इनटेंजिबल, गुडविल इट इज अ इनटेंजिबल, ये सारा मैं समझा दूंगा आपको। 30,000, अभी क्या हो गया, ही ब्रॉट 30,000 एज अ गुडविल टू कॉम्पेंसेट देयर सैक्रिफाइस, आई बात समझे, मतलब दो बात क्लियर हो गया कि कभी भी पार्टनरशिप में नए पार्टनर को एडमिट करते समय, ठीक है, उससे आपको कैपिटल लेना है और एक गुडविल लेना है। कैपिटल इसलिए चाहिए हमें, वो तो जरूरत थी, और कैपिटल से वजह से न्यू पार्टनर विल गेट अ राइट ऑन एसेट, ठीक है। दूसरा ऐसा है, अभी उसने गुडविल लाया था, ठीक है, गुडविल का सैक्रिफाइस किया इन लोगों ने, और भी शेयरिंग रेशो, इस वजह से मैंने गुडविल बताया। अभी क्या हुआ, ही ब्रॉट द गुडविल इन पार्टनरशिप टू जॉइन दैट, ठीक है, सो ही कैन एंजॉय द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये एक बात ध्यान में रखना, आई बात समझे, मतलब ऐसा हुआ, प्रॉफिट में, प्रॉफिट और लॉस में अगर शेयर चाहिए तो उसको गुडविल लाना है। अभी एक बात ध्यान में रखना, इनको गुडविल चाहिए नहीं चाहिए ये इन्होंने डिसाइड करना है, आई बात समझे, वो 30,000 चाहिए, 2,000 चाहिए या तो नहीं चाहिए, दैट इज द मैटर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। नहीं तो मैंने बोल दिया और एक आधे मतलब एग्जाम्पल में गुडविल ला ही नहीं रहा तो आप कंफ्यूज मत होना, वो तो उनको डिसाइड करना है। लेकिन मैंने एक जो राइट
एसेट पे बताया था और एक क्या शेयरिंग रेशियो में, उसका मैंने मीनिंग आपको बता दिया है। अब ये आगे चलते हैं अपन। अब बात कैसे हुआ कि इसको एडमिशन देने के पहले आपका बिजनेस तो था ही, आई बात समझे। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है इन दोनों का है, ए और बी का। जो लाइबिलिटी है एसेट है, कैश है, बैंक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ठीक है, स्टॉक है, डेटर्स है, जो कुछ एसेट्स होगा। हु इज द ओनर ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट? ए एंड बी, ठीक है। सम आर द लाइबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व, क्रेडिटर, लोन, सिक्योर, अनसिक्योर, whatsoever outstanding expenses. Who is responsible to discharge the liability? A and B. Means at present, at the time of admission, ठीक है ना, C is not responsible. आई बात समझे, वह रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आई बात समझे। दूसरी और बात ऐसा है, एसेट का भी उसका कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से A and B wants to मेड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। वो रिवैल्यूएशन करेंगे। यह समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज अ प्लॉट परचेज, ठीक है ना, बाय पार्टनरशिप बिफोर 10 years और 5 years फॉर रुपीज सपोज 5 लाख। 5 लाख का उन्होंने एक प्लॉट परचेज किया था। आई बात समझे, बिफोर 5 years, ख्याल में रखना, बिफोर 5 years। नाउ एट प्रेजेंट इन 2021 द कॉस्ट ऑफ दैट मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ दैट प्लॉट इज सपोज डबल, दैट इज 10 लाख। आई बात समझे, 10 लाख है, सही बात है। तो इसमें जो कैपिटल गेन हो रहा है 5 लाख का, उसका फायदा ये दोनों लोग लेंगे, यह नहीं लेगा, ये तो अभी आ रहा है, रास्ता क्लियर हो गया। इसी वजह से कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हाटसोएवर मैं बोल रहा हूं, उसका रिवैल्यूएशन करना है, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा एप्रिसिएशन ऑफ एसेट। आई बात समझे। सो एप्रिसिएशन ऑफ एसेट कैन एंजॉय बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर, नॉट बाय द न्यू पार्टनर। सेकंड, सम एसेट मींस फर्नीचर एक्सेट्रा मे बी डेप्रिसिएट। ये भी बरोबर है। अभी फर्नीचर लेते हैं, तो मैंने प्लॉट लिया था, अभी फर्नीचर लेते हैं। अभी फर्नीचर था सपोज 50,000 का 5 साल के पहले, अभी वो 50,000 का तो नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है, वह है 20,000 का डेप्रीसिएट होते हुए 20,000 का। यह जो लॉस है इसमें का मतलब कैपिटल लॉस जिसको बोलूंगा, कौन बेयर करेगा? ए और बी, सी थोड़ी ना करेगा, ठीक है। वैसे ही कोई लाइबिलिटी लोन लिया होगा, उसका इंटरेस्ट देना है, कुछ पेमेंट करना है, तो कौन देगा? यह देगा, यह रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। वैसा ही समझो कुछ रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, ठीक है, वो मैं बताता आपको, जनरल रिजर्व है, वह रिजर्व पे हक जो है वह ए और बी का है, सी का नहीं है। आई बात समझे, ठीक है। इसी वजह से एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देयर इज अ नीड ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। आई बात समझे। अब अपन क्या करेंगे, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाया जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वह मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज, ठीक है, यानी इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप। सिंपल बात हो गया, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अभी देखिए आपको मैं एकदम स्टेप्स बता रहा हूं और उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। पहली बात ऐसा है कि सी इज ए न्यू पार्टनर, सी इज ए न्यू पार्टनर, ठीक है। इसने बताया था ए और बी ने, ठीक है, हम एडमिशन देते हैं तुझे, लेकिन कम अप विथ 1 लाख एज अ कैपिटल। आई बात समझे। अभी क्या हुआ, सी ने कैपिटल लाया, कितना लाया? 1 लाख रुपए। तो आप एंट्री पास कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है, सीज कैपिटल। सिंपल बात हुआ, कोई नई बात नहीं है। सीज कैपिटल दैट इज 1 लाख, ये हुआ 1 लाख। आई बात समझे।
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी न्यू पार्टनर, ऐसा भी लिख सकता है आप लोग, मतलब नरेशन सेकंड। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि उसको मतलब गुडविल लाना है। ठीक है, उसने गुडविल कैश में लाया। मैं सिर्फ अभी आपको जर्नल एंट्री समझा रहा हूं, गुडविल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। गुडविल ब्रॉट इन बाय सी इन टर्म्स ऑफ कैश। ठीक है, तो कैश आ गई, तो मैं एंट्री करता हूं, इट इज डिपॉजिटेड इन बैंक, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। सिंपल बात हो गया, गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट दैट इज सपोज 50,000 50,000। ठीक, थर्ड। ठीक है, आफ्टर पासिंग जर्नल एंट्री अबाउट द गुडविल, goodwill brought in by C in the form of cash, so बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। ठीक है ना, अभी क्या करना, ब्लाइंडली, ठीक है ना, ब्लाइंडली बिल्कुल। ठीक है, यू हैव टू क्रेडिटेड दैट गुडविल टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आई क्या बात समझे, उन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को वह गुडविल कैश में लाने के बाद इमीडिएटली क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट्स। यह बात ध्यान में रखना। तो मैं आपको एंट्री बता रहा हूं, गुडविल अकाउंट डेबिटेड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ है, रास्ता क्लियर हुआ। गुडविल कैश में लाया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। जैसा ही कैश में गुडविल लाया, इमीडिएटली क्रेडिटेड टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको क्रेडिट कर देना है। आई बात समझे, ठीक है। आगे चलते हैं फॉर। ऐसा समझ लीजिए कि यहां पे बिल्डिंग है, फर्नीचर है। ठीक है, अब एक बिल्डिंग लेता हूं, ठीक है ना, बिल्डिंग, ठीक है। दैट मीन्स द बुक वैल्यू ऑफ दिस बिल्डिंग नियर अबाउट सपोज है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। ठीक है, एक एडजस्टमेंट दिया है यहां पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग सपोज 20,000, या तो सपोज बिल्डिंग रीवैल्यूड, बिल्डिंग रीवैल्यूड, वहां रिवैल्यूएशन किया तो रिवैल्यूएशन का फिगर बताया मुझे 8 लाख, 10 लाख के जगह पे बिल्डिंग का 8 लाख बताया, तो इसको मैं बोलूंगा बिल्डिंग इट इज डेप्रिसिएटेड, बरोबर है। अगर इसको अगर 12 लाख बताया तो इसको मैं एप्रिसिएट बोलूंगा, सिंपल बात है। ठीक है, अभी इसको डेप्रिसिएट रिड्यूस करवा दिया, रिवैल्यूएशन उसका। अब क्यों किया होगा, तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के वजह से, प्लॉट के वजह से नहीं है। ठीक है ना, वो रिड्यूस हो गया। अभी मैं ये बोलूंगा इट इज अ लॉस, यह एक लॉस हुआ, कैपिटल लॉस हुआ। कौन बेयर करेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर, सिंपल बात है, रिवैल्यूएशन कर रहा हूं यहां पे। अब इसी एग्जाम्पल को लेते हुए सभी को ले लेना। इफ एसेट इट इज डेप्रिसिएटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, आई बात समझे, दैट इज अ लॉस। ठीक है, व्हाट एवर एसेट इट इज डेप्रिसिएटेड, ठीक है ना, व्हाट एवर एसेट, व्हाटसोएवर एसेट डेप्रिसिएटेड, सो इट इज अ लॉस, इट इज अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये लॉस हुआ। आई बात समझे, दैट लॉस डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई बात समझे, टू वेरियस एसेट्स अकाउंट या रिस्पेक्टिव एसेट्स, रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। आई बात समझे,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। देखो मैंने क्या किया, जो भी एसेट होंगी, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर्स है, व्हाटसोएवर, इफ इट इज रिड्यूस वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, रिवैल्यूएशन उनका कम करवा दिया, तो ये तो लॉस हुआ। इसी वजह से मैंने बोला आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, वह सारा रिवैल्यूएशन के अकाउंट को डाल देना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। ठीक है, फिफ्थ, ठीक है। फिर देखना है एसेट साइड में, कुछ एसेट ऐसी भी हो सकती है इट इज एप्रिसिएटेड। ठीक है, कॉमन एक्सप्लेन कर रहा हूं, एप्रिसिएटेड। ठीक है, एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएट का मतलब क्या हुआ, जैसा अभी बिल्डिंग 10 लाख है वह 10 लाख है, वह 12 लाख हुआ, 15 लाख हुआ, सच एंड टाइप ऑफ एसेट इफ इट इज एप्रिसिएटेड, ठीक है ना, सो द पार्टनरशिप मीन्स द पार्टनर कैन एंजॉय दैट गेन। ठीक है, सो I can pass the journal entry respective assets, ठीक है ना, respective assets account debited to revaluation account, revaluation account, respective इसलिए लिखा मैंने आप शब्द, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू, जो भी होगा वो लिखना है आपको। ठीक है, अभी जो पहला जो बताया था फोर्थ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव एसेट, तो वहां पे क्या हुआ था, एसेट डेप्रिसिएट हुआ था। आई बात समझे, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, अगर गेन हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। आई बात समझे, ठीक है। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में मुझे दिख रहा है रिजर्व। आई बात समझे, ये रिजर्व यानी क्या हुआ, एग्जिस्टिंग पार्टनर फ्रॉम लास्ट 5 ईयर केप्ट असाइड सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर लाइकली टू बी हैपन। आई बात समझे, तो लाइकली टू बी हैपन मतलब जो भी बिजनेस एक्टिविटीज में जो लॉस हो सकता है, कुछ एबनॉर्मल इवेंट्स हो सकता है, ठीक है, उस वक्त आपके पास फंड नहीं होगा, इसी वजह से यह पार्टनर्स ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल के रखा था। आई बात समझे, वह है रिजर्व, या तो समझो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बचा होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलूंगा, यह सब रिजर्व जो कुछ है। आई बात समझे, यह रिजर्व पे हक है ए और बी को। तो यहां पे सपोज एक रिजर्व है, रिजर्व, आई बात समझे, सपोज 10,000, ठीक है, यह आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है ना, देखो अभी रिजर्व है तो आपके बात समझ में आया होगा, रिजर्व मीन सम अमाउंट केप्ट असाइड फॉर लाइकली टू बी हैपन, ठीक है ना, जो एबनॉर्मल इवेंट हो सकता है। तो रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू, सिंपल बात है, ए अकाउंट, ठीक है, एंड टू बी अकाउंट। ठीक है ना, न्यू पार्टनर को तो देना ही नहीं, वो तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, यह क्रेडिट कर देना है 5,000, सिंपल बात है। ये एग्जांपल मैंने तैयार किया और वो लिख दे रहा हूं सिर्फ समझने के हिसाब से। आई बात समझे, ठीक है। इफ देयर इज अ सपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हो सकता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया था 8,000, ठीक है, वो 8,000 भी मैं इनको ही दूंगा। आई बात समझे, फिर से एंट्री करूंगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, डेबिटेड टू, फिर से ए अकाउंट, ठीक है, और टू बी अकाउंट। आई बात समझे, ए अकाउंट एंड बी अकाउंट। ठीक है, सपोज 4,000 8,000 मीन्स 4,000 एंड 4,000। मतलब सिंपल बात हो गया। आई बात समझे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ, मैंने एसेट साइड लिया, फिर लायबिलिटी साइड लिया। आई बात समझे, अभी एंट्रीज क्लियर हो गए, कुछ एडजस्टमेंट भी दिए जाएगा कि भाई बैड डेट्स है, ठीक है ना, या सपोज क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, ठीक है, वह एंट्रीज जो मैंने बताया अभी आपको। आगे चलता है, अभी क्या करना है आपको, यह होने के बाद
means with the help of all the journal entries you have to prepare a revaluation account. Revaluation account, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आपको, आई बात समझे? ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी क्या करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो जर्नल एंट्रीज आपने पास की थी, ठीक है ना, जो जर्नल एंट्रीज आपने पास की थे उसके बेस पे यह अकाउंट में पोस्टिंग कर देना है। सिंपल सी बात है, पोस्टिंग कर देना। पोस्टिंग मे बी सम अकाउंट्स आर डेबिटेड टू दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड सम अकाउंट्स आर क्रेडिटेड टू दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन इजीली फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना, अभी प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड, सिंपल बात है। ठीक है, मतलब ये इनकम साइड हो गया और एक एक्सपेंस साइड हो गया ना, लॉस हो गया यहाँ पे। इफ द क्रेडिट साइड इज मोर, ठीक है ना, क्रेडिट साइड की टोटल अगर ज्यादा आती है, आई बात समझे, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसी वजह से जो प्रॉफिट यहाँ पे बाद में तो एग्जांपल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, टू एज अकाउंट, आई बात समझे, और टू बीज अकाउंट, ऐसा यहाँ पे लिखना है। मतलब ऐसा है, व्हाट एवर प्रॉफिट shown by that revaluation account, it is credited to existing partner, not to new partner। आई बात समझे? सो मैं एंट्री पास कर दूंगा यहाँ पे, आपके समझ में आया होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, सम अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड सम अकाउंट आर क्रेडिटेड एंड you will get that profit credited to existing partner, that as account and B's account in their profit sharing ratio। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, इसलिए एक एंट्री कर देता हूं यहां पे 8 नंबर का। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है ना, एज अकाउंट एंड टू बीज अकाउंट, मीन्स प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू ए एंड बीज अकाउंट। इफ सपोज लॉस इनकर्ड, ऐसा समझ लीजिए कि लॉस आया तो क्या करेगा, ए एंड बी बेयर दैट लॉस। सो आई वांट टू पास जर्नल दिस एंट्री, आई पास फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट यहां पे लिख के देता हूं, प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू एज अकाउंट एंड बीज अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब लॉस है सपोज, तो ए अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, बी अकाउंट डेबिटेड, आई बात समझे? ठीक है, टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस हुआ तो। ठीक है, यहां पे आपका जर्नल एंट्रीज यानी खत्म हो गया। When you want to solve the problem of admission of a partner, so you have to go through some steps। ठीक है, you will get in an example the balance sheet of that partnership and all information and some adjustments are given there। So the first step is you have to open the respective accounts। ठीक है, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स कौन सी ओपन करना है आपको? नंबर 1 इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आपको। ठीक है, ठीक है, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, सेकंड आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स, ये पहली बना लेना है आपको, कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, ए एंड बी एंड सी आल्सो, तीनों पार्टनर का। ठीक है, एक आपको गुडविल अकाउंट बनाना है, गुडविल अकाउंट। ठीक है, एक आपको कैश बैंक अकाउंट बनाना है, आई बात समझ है? ठीक है, ये आपकी मतलब तैयारी है। ठीक है, कैसा एडमिशन आप पार्टनर है। ठीक है,
आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा जहाँ पे बैलेंस शीट दिया जाएगा और सम एडजस्टमेंट आल्सो गिवन. सो यू हैव टू ओपन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस. यू हैव टू प्रिपेयर अ कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, टू फाइंड आउट देयर प्रॉफिट, टू फाइंड आउट देयर कैपिटल आफ्टर गिविंग द एडमिशन टू अ न्यू पार्टनर. ठीक है. यू हैव टू ओपन अ गुडविल अकाउंट बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द गुडविल ब्रॉट इन बाय सी as a compensation because the existing partner A and B sacrifice the shares. ठीक है. And cash and bank, so you have to find out the balance in cash, cash balance at bank. ये फाइंड आउट करना है. ऑन दैट बेसिस यू हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. अब उस बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा आपको. ठीक है ना. बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप आफ्टर गिविंग एडमिशन. तो कुछ चेंजेस आएंगे बिकॉज यूर बैलेंस शीट इज रियल. सम एसेट्स आर एप्रिसिएट, सम एसेट्स आर डेप्रिसिएट, सम लायबिलिटीज discharged by, some liability created, and the capital also change. So you have to prepare balance sheet on the basis of that revalued figure. इतने एक्सप्लेनेशन से आपके समझ में आया होगा कि भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसका मकसद क्या था, यह हो गया. और कुछ मैंने जर्नल एंट्रीज बताई हैं, हालांकि सारी एंट्रीज मैंने एक्सप्लेन करवा दिया. ऑन द बेसिस ऑफ मतलब दैट एंट्रीज यू हैव टू ओपन सच एन टाइप ऑफ अकाउंट्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ठीक है. Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.